Welcome students to lecture number 8. Today we are also continuing with the accounting terminology part, that is the basic accounting terminology, and next term we are going to start. In the last lecture also we completed certain terms. In the last lecture we completed with the solvent, insolvent, bad debt and expense and expenditure. So in the last lecture we started with the solvent. An individual is considered to be solvent when his assets are more than his liabilities. That means that person is capable to pay off all his liabilities fully. एग्जाम्पल देखा था, अगर पर्सन के पास असेट्स है 1 लाख की एंड लाइबिलिटीज है 70,000 की, दैट मीन्स दैट पर्सन इज केपेबल टू पे ऑफ ऑल हिज लाइबिलिटीज फुल्ली, और आइदर दैट पर्सन इज हैविंग इक्वल असेट टू द लाइबिलिटीज. असेट्स भी 1 लाख की है एंड लाइबिलिटीज भी 1 लाख की है. That means that person is in a sound position to pay off all his liabilities fully, and such an individual or such a person is called as a solvent person. Next term is insolvent. When a person is having more liabilities than assets, then that person is declared as an insolvent. He is not in a sound position or he is not capable to pay off all his liabilities fully. उस आदमी की ऐसी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज देर इज लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन असेट, लाइबिलिटीज एक्सीड असेट, उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है असेट से. इवन इफ दैट पर्सन सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, स्टिल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे ऑफ ऑल हिज लाइबिलिटीज फुल्ली, एंड सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन. यहाँ पे उसकी असेट्स होगी 1 लाख की, तो लाइबिलिटीज होगी more than 1 lakh, like 1,50,000 or 2 lakh. That means even if all property is sold out, still it is not possible to pay off all his liabilities fully. Next term, that is a bad debt. An amount which is irrecoverable from a debtor is known as a bad debt. ऐसे पैसे जो डेटर के पास से वसूल नहीं होते हैं, that is called as a bad debt. Due to bad debt, there is a reduction in the value of debtors. बिजनेस में बैड डेब्ट्स क्रिएट होने से डेटर्स की वैल्यू कम होती है, एंड इट इज़ अ वन टाइप ऑफ अ लॉस टू द बिजनेस, और बिजनेस को होने वाला एक नुकसान है. नेक्स्ट टर्म वी कंप्लीटेड, दैट इज एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर. अमाउंट्स स्पेंड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न अ रेवेन्यू और इनकम. सच अमाउंट स्पेंड टू अर्न अ रेवेन्यू और इनकम इज कॉल्ड एज एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर. इनकम कमाने के लिए जो पैसा खर्च होता है, ऐसे अमाउंट को कहा जाता है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर. बिकॉज वी नेवर स्पेंड विदाउट एनी इंटेंशन. वेल स्पेंडिंग एवरी टाइम वी हैव सम काइंड ऑफ इंटेंशन कि सम काइंड ऑफ बेनिफिट वी शुड गेट. सो आउट ऑफ एवरी स्पेंडिंग वी वांट सम काइंड ऑफ बेनिफिट, एंड सच अमाउंट स्पेंड विद इंटेंशन टू अर्न अ मनी और income, that is called as an expense or expenditure. Expenditure are broadly classified into 3 types. One is a capital expenditure, second is a revenue expenditure, and third is a deferred revenue expenditure. Now what is capital expenditure, students? Capital expenditure are such expense in which huge amount is spent, benefit from such expenses for the long period of time. Such expenses are non-recurring expenses. In short, expenses incurred for an acquiring an asset and to increase the value of asset, that is called as a capital expenditure. And such expenses helps to increase the profitability of business. ऐसे expense करने से business का profit बढ़ने वाला है. Example of your capital expenditure, purchase of an asset. हमने example देखा था, वो machine का था. Any kind of fixed asset you are purchasing. And again, additional expenses related with the purchase of a fixed asset, which comes carriage charges and installation charges. Carriage means transportation charges, installation which is also known as erection charges, machine के parts join करने का होने वाला expense, that is called as installation or erection charges.
Next we have a second type, that is the revenue expenditure. Now what is revenue expenditure? Revenue expenditure are such expense in which small amount is spent. Benefit from such expenses is limited for the period of 1 year only. Such expenses are recurring expenses. ऐसे expense business में हमें बार बार करने पड़ते हैं, and such expenses helps to maintain the profitability of business. ऐसे expense करने से हमारे business का profit maintain रहने वाला है. Example of your revenue expenses: salary, electricity, telephone bill payment, insurance premium, etc. And next we have, that is the third type, deferred revenue expenditure. Expenses which is revenue in nature but benefit is for more than 1 year. Such expenses are called as a deferred revenue expenditure. And on deferred revenue expenses, these are such type of expense in which huge amount is spent, and therefore it becomes necessary to write off such amount in next 2-3 years. खर्च होने वाली अमाउंट एक बड़ी अमाउंट होती है और वो सारा खर्चा एक साल के लिए तो नहीं होता है, दैट इज़ फॉर द मैनी ईयर्स ऑफ बिजनेस, एंड दैट्स वाई वो खर्चा हमें बिजनेस में से निकाल देना है बाय डिवाइडिंग इनटू नेक्स्ट 2-3 years. And that expenses is shown on the debit side of trading and profit and loss account, and unwritten expenses is shown on the balance sheet asset side. Example of your deferred revenue expenditure is heavy advertisement expenditure, preliminary expenses, and discount on issue of shares, etc. Now next term we are going to start, that is a account. आज हम जो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंट. तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट, इट इज ए समराइज रिकॉर्ड of all transaction relating to particular person, income, expense or asset. So account का मतलब है it is a summarized record of all transactions relating to particular person, income, expense और asset. ये summarized record किसी आदमी का हो सकता है, इनकम का हो सकता है, एक्सपेंस का हो सकता है या फिर asset का हो सकता है. So it is a summarized record of all transactions relating to any person, income, expense or asset. For example, during the year we purchase goods from Mr. Ganesh 10 times. पूरे साल में हमने 10 बार मिस्टर गणेश के पास से माल खरीदा है. And during the same year we paid 6 times. 10 बार माल खरीदा है, 6 बार हमने उसे पैसा भी दे दिया है. And now I want to know what is the total purchase made, how much amount we paid and what is the balance amount. अभी मुझे जानना है कि अब तक हमने कितने रुपए का माल खरीदा है, टोटल परचेस की वैल्यू कितनी है, अब तक हमने उसे पैसा कितना दिया है और कितना पैसा देना बाकी है. आप कहोगे सबका रिकॉर्ड तो होगा. यस, सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है बुक में, बट दैट इज केप्ट इन वन बुक ओनली. ये सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हमने रखा है बिकॉज बिजनेस के डे टू डे लाइफ में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन का हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एंड दैट रिकॉर्ड इज केप्ट इन वन बुक. दैट बुक इज कॉल्ड एज अ जर्नल. जर्नल ऐसा बुक है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, तो जिसमें परचेज भी रिकॉर्ड है, सेल्स भी है, इनकम भी है, एक्सपेंस भी है. तो गणेश के साथ जितने भी डीलिंग्स हुए सभी का रिकॉर्ड इस बुक में है. बट अगर मुझे अभी जानना है, 10 बार तो उसके पास से माल खरीदा है और मुझे अभी जानना है टोटल परचेस कितना है, तो क्या करना पड़ेगा? जर्नल के बुक में से
मुझे रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा गणेश और मेरे बीच में जो भी परचेस ट्रांजैक्शन हुए, गणेश के पास से माल खरीदा 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 या मिला। नेक्स्ट पेज परचेस 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 नहीं है, थर्ड पेज परचेस हाँ है, परचेस नहीं है, परचेस फ्रॉम गणेश चाहिए मुझे। ओके तो पूरी बुक मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसमें से मुझे परचेस की वैल्यू मिलेगी। अगेन आई हैव टू आंसर हाउ मच अमाउंट पेड टू गणेश, अगेन आई हैव टू सर्च फॉर द पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड देन वी आर एबल टू आंसर व्हाट इज द बैलेंस। तो इतना सारा फाइंड आउट करने के लिए इतना टाइम हमारे पास बिजनेस में नहीं होता है। फॉर दैट पर्पज, फॉर कन्वीनियंट पर्पज, व्हाट वी कैन डू, गणेश के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस सभी का समराइज रिकॉर्ड हम लोग करते हैं एंड दैट समराइज रिकॉर्ड इज केप्ट एट वन प्लेस। गणेश के साथ जो भी डीलिंग्स हुए हैं सारे डीलिंग्स का हम लोग समराइज रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं एंड दैट समराइज रिकॉर्ड केप्ट एट वन प्लेस ओनली एंड दैट वन प्लेस इज कॉल्ड एज अ अकाउंट। गणेश और हमारे बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सभी का रिकॉर्ड हमारे पास है, बट दैट इज इन अ जर्नल बुक एंड दैट इज इन अ मिक्स फॉर्म। और मुझे अगर खाली गणेश का ही डिटेल चाहिए तो मैं क्या करूंगी, गणेश का समराइज रिकॉर्ड प्रिपेयर करूंगी एंड दैट रिकॉर्ड इज केप्ट एट वन प्लेस एंड दैट प्लेस इज नोन एज अ अकाउंट। सो नाउ स्टूडेंट्स यू विल टेल मी हाउ अकाउंट कैसा होता है। मिस मुझे हमें बताओ अकाउंट कैसा होता है। अकाउंट इज द प्लेस वेयर वी कीप अ समराइज रिकॉर्ड, जिसमें हमने समरी प्रिपेयर की है। गणेश और हमारे बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी समरी प्रिपेयर की एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। तो अकाउंट होता कैसे है, so this is the account. Account is the place where we are keeping a summarized record and that summarized record may be related with any individual, income, expense or asset. Account. Account has a two side. Left hand side is called as a debit and right hand side is known as a credit. Debit is denoted by DR and credit is denoted by CR, that is debit record and credit record. Each side has a 4 columns: date, particulars, JF, amount. Again same 4 column on a credit side: date, particulars, JF, amount. So this is your account. Account has a two sides. Left hand side is known as debit side and right hand side
is known as credit side. Each side has 4 columns. That is date, particulars, JF, that is journal folio, and amount. So account is the place where we get the summarized record, that summarized record related with any individual income, expense और asset. और अभी हमने गणेश का अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड होगा दैट इज ऑफ गणेश ट्रांजैक्शंस ओनली. तो पूरे साल में हमने गणेश के साथ जो भी डीलिंग किया था उसी सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड इसी में आ जाएगा. गणेश अकाउंट, तो सारे ट्रांजैक्शन गणेश के होंगे. तो जस्ट बाय ओपनिंग गणेश अकाउंट वी आर एबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद द गणेश ट्रांजैक्शंस. तो गणेश और हमारे बीच में जो भी डीलिंग्स हुए हैं सभी का समराइज रिकॉर्ड हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, जिसे नाम दिया जाएगा गणेश अकाउंट. अभी मुझे पूरा बुक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. बाय चेकिंग जस्ट गणेश अकाउंट वी आर एबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद द गणेश. So we are able to answer what is the total purchase made, how much amount we paid to the Ganesh, and what is the outstanding amount that is a due amount. So this is your account. Same in case of asset also. Asset, take example of machinery. पूरे साल में हमने कितनी मशीन्स परचेस की है, कितनी मशीन्स बेची है, अगर मुझे ये जानना है तो जस्ट आई टू प्रिपेयर अ समराइज रिकॉर्ड रिलेटेड विद द मशीन्स ट्रांजैक्शंस. तो हम लोग मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. इसमें मशीनरी परचेस का भी रिकॉर्ड होगा, मशीनरी सेल का भी रिकॉर्ड होगा. देन वी कम टू नो हाउ मच मशीनरी वी हैव विद अस एट द एंड ऑफ द ईयर. सेम इन केस ऑफ इनकम ऑल्सो. कमीशन अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, तो पूरे साल में हमें कितना कमीशन मिला है या हमने कितना कमीशन पे किया है. सो ये सारी जानकारी हमें मिल सकती है बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट. सो दैट इज योर फर्स्ट टर्म अकाउंट. Next we have second term, head of account. Head of account means name of account. नेम ऑफ अकाउंट, जैसे अभी हमने कहा गणेश का अकाउंट है तो हेड ऑफ अकाउंट इज गणेश. मशीनरी अकाउंट है तो हेड ऑफ अकाउंट इज मशीनरी अकाउंट. हमने सैलरी अकाउंट प्रिपेयर किया तो हेड ऑफ अकाउंट इज सैलरी अकाउंट. इन शॉर्ट हेड ऑफ अकाउंट का मतलब होता है नेम ऑफ अकाउंट. थर्ड, फोलियो. फोलियो मीन्स पेज नंबर. अकाउंटिंग लैंग्वेज में फोलियो का मीनिंग होता है पेज नंबर. यहाँ पे है JF, दैट इज अ जर्नल फोलियो. JF मीन्स जर्नल फोलियो, दैट इज पेज नंबर ऑफ जर्नल बुक. LF. LF means ledger folio, that is page number of ledger book. So अकाउंट में ये JF है, that JF stand for जर्नल फोलियो. इसका मतलब है पेज नंबर ऑफ अ जर्नल बुक. तो वैसे ही कई जगह हमें LF लिखना पड़ता है, दैट LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो,
which means page number of a ledger book. So folio का मतलब page number. Next fourth term is casting. Now what is casting? Casting means totaling of an account. Accounting language में casting का meaning होता है total. So casting means totaling of an account. Then why we are doing the casting? Casting क्यों किया जाता है? Casting is done to find out balance in account, अकाउंट की बैलेंस जानने के लिए हम लोग कास्टिंग करते हैं. सो कास्टिंग मीन्स टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट. नेक्स्ट टर्म वी हैव दैट इज अ पोस्टिंग. So posting, what do you mean by posting, students? Yeah, simple English. Yes, of course, posting means transfer. हम नॉर्मली सुनते हैं मेरे पापा का पोस्टिंग पूना में हुआ है. पोस्टिंग हुआ मतलब ट्रांसफर. तो यहाँ पे भी पोस्टिंग का मतलब है ट्रांसफर. सो पोस्टिंग मीन्स transfer of entry from journal book to ledger book. So posting का मतलब है transfer of entry from journal to ledger book. So all these terms are related with your account only. So what is, students, exactly account? Account, it is a summarized record of all transactions relating to particular person, income, expense or asset. Account वो किसी आदमी का हो सकता है, income का हो सकता है, expense का हो सकता है या फिर asset का हो सकता है. So either it may be of Ganesh account, Suresh account, Seema account, or either it is a income. In case of income we can say rent received account, in commission received account, investment account, that is in case of asset. Expense है तो salary account, electricity account, advertisement account, and again asset, machinery account, computer account. So किसी भी asset का account. So it is a summarized record relating to particular assets, income, expense or person. Account होता कैसा है? So this is your format of account. Account is divided into two parts. Left hand side of account is known as the debit side and right hand side is known as the credit side. Each side has a 4 columns, namely date, particulars, JF amount. Same 4 column on a credit side, date, particulars, JF and amount. So account has a 2 side. Left hand side is called as a debit, which is denoted by DR, and right hand side is denoted by CR, that is a debit record, and CR for credit record. Each side has a 4 columns, date, particulars, JF, that is journal folio, and amount. Next term is head of account. Head of account means name of account. Folio, folio means page number. JF means journal folio, that is a page number of a journal book. LF, LF means ledger folio, that is a page number of a ledger book. Next term is casting. Casting means totaling of an account. Casting is done to find out balance in an account. टोटलिंग करना, सिंपल इंग्लिश जिसे हम लोग टोटल कहते हैं, उसे ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है कास्टिंग. एंड कास्टिंग क्यों किया जाता है? टू फाइंड आउट द बैलेंस इन एन अकाउंट. पोस्टिंग, पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर.
एंट्री का पोस्टिंग किया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है जर्नल बुक में से लेजर बुक में. सो जस्ट रिवाइज दिस ऑल टर्म्स. स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी टर्म्स कंप्लीट किए हैं वो हम लोग नोट्स में से रिवाइज करेंगे. तो जस्ट आपके नोट्स निकालो, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे सो दैट एनी मिस्टेक और एनी वर्ड्स यू कांट अंडरस्टैंड वी कैन एक्सप्लेन दैट. सो फर्स्ट, पेज नंबर 7, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. The following are the technical terms which are very often used in accounts. Terminology, that is nothing but the terms, concepts कहते हैं जिसे हम लोग, जो technical terms है जो हम लोग accounting language में use करने वाले हैं. First transaction is business transaction. Underline the word transaction and write with a pencil. Transaction means dealing. आपको ये सब notes में ही लिखना है, तो that is only for your understanding purpose. I am giving the extra words. Take a pencil, underline the word transaction. Transaction means dealing. Any dealing of business that involves buying and selling of goods and services in exchange of value, that is money, is called as a business transaction. Transactions are classified as a monetary and non-monetary. Under monetary we have a cash transaction and credit transaction. Under non-monetary we have a barter system. Monetary transaction, the transaction which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called monetary transactions. Underline the students. ऐसे transactions, ऐसे dealings जिसमें पैसे exchange होते हैं directly or indirectly, that is called as a monetary transactions. Only monetary transactions are recorded in the books of account. और books of accounts में हम लोग खाली monetary transactions का ही record करते हैं. Under monetary transaction we have a cash transaction. Cash transaction is that transaction in which cash payment or cash receipt is made immediately. ऐसे transaction जिसमें पैसे तुरंत मिलते हैं या पैसे दिए जाते हैं. Credit transaction. Credit transaction is that transaction in which payment is not made immediately. जिसमें तुरंत पैसे नहीं दिए जाते हैं. It is made on some future date. पेमेंट होगा बट फ्यूचर के डेट में होगा. बी पार्ट, दैट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है. द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. अंडरलाइन दिस सेंटेंस. Transaction which does not involve an exchange of money or money's worth are called as non-monetary transactions. It is not recorded in the books of account. Non-monetary transactions का books में record नहीं किया जाता है. An exchange of commodity against another commodity is called barter system. एक commodity के बदले में हम लोग दूसरी commodity exchange करते हैं, उसे कहा जाता है barter system. That will come under the non-monetary. Second, number 2, numbering mistake है students, उसे correct करो. Goods is the second term. Goods, simple English, commodity. Goods are the commodity which are bought and sold by a trader. Goods ऐसी commodity है जिसकी खरीदारी या बिक्री करता है trader. Trader, that is a businessman. It means commodity in which businessman deals. कोई भी commodity मतलब goods है क्या? तो no. ऐसी commodity, ऐसी चीज, ऐसा आर्टिकल कमोडिटी, वस्तू म्हणतो मराठीमध्ये ज्याला आपण, तो ऐसी कमोडिटी जिसमें ट्रेडर डीलिंग करता है, जिसमें बिजनेसमैन डीलिंग करता है.
These are purchased or manufactured for sale with the object of earning profit. ये ऐसी कमोडिटी है जो जिसे हम लोग खरीदते हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर सेल पर्पस, एंड वाइल सेलिंग आवर इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट. ऑब्जेक्ट दैट इज इंटेंशन, हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है. तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो चीज़ आइदर हम लोग परचेस करते हैं फॉर रीसेल पर्पस और आइदर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं. एग्जाम्पल, क्लॉथ इज अ गुड्स फॉर द क्लॉथ मर्चेंट, फर्नीचर इज द गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर, एंड मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट. एग्जाम में आपको टर्म्स आते हैं तभी एग्जाम्पल लिखने ज़रूरी है. यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल. एंड स्टूडेंट्स, अनदर मिस्टेक नॉर्मली यू मेड, गुड्स का स्पेलिंग GOODS है, बट नॉर्मली स्टूडेंट S लिखना भूल जाते हैं और खाली आप लोग लिखते हैं गुड. तो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंट. गुड इज डिफरेंट वर्ड एंड गुड्स इज डिफरेंट वर्ड. सो मेक अ हैबिट, गुड्स के स्पेलिंग में S आना जरूरी है. थर्ड, एंट्री. एंट्री का मीनिंग रिकॉर्ड. अंडरलाइन द वर्ड एंट्री, ब्रैकेट में लिखो मीनिंग रिकॉर्ड. Recording of transaction in the proper form or method in the books of account is called an entry. Underline the sentence. Recording of transaction in the proper form or method. बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो बिजनेस के फॉर्मेट, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है. दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग, दैट फॉर्म ऑफ राइटिंग और मेथड ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एज एन एंट्री. Entry can be made only for monetary transactions, that is transaction which can be measured in terms of money. Entry हमेशा monetary transactions की पास की जाती है. And what do you mean by monetary transaction? Which can be measured in terms of money, जिसकी हम लोग money value calculate कर सकते हैं. In the books of account of every transaction, entry has to be passed. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की जाती है. फॉर पासिंग अ एंट्री देयर इज अ नीड ऑफ एटलीस्ट 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट अकाउंट. अंडरलाइन स्टूडेंट्स, एंट्री पास करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट अकाउंट. नेक्स्ट, फोर्थ टर्म, नरेशन. नरेशन मीन्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड. जिस ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री पास की है उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है. एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण. अंडरलाइन द सेंटेंस. नरेशन मीन्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड. ट्रांजैक्शन की हमने जो एंट्री पास की है उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है. इट इज़ अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन की समरी होती है. इट इज़ जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री. एंट्री का मीनिंग होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है. इट इज़ ऑलवेज रिटन बिलो द एंट्री इन अ नेक्स्ट लाइन. नरेशन हमेशा नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है. इट इज़ रिटर्न इन ब्रैकेट, वो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है. एवरी नरेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग और फॉर, और हर एक नरेशन की शुरुआत बीइंग या फॉर वर्ड से की जाती है. नेक्स्ट इज fifth terms, book of prime entry. Underline the word prime. Prime means main, important, मुख्य. Books of prime entry. Prime का मतलब main, important. It is also known as books of original entry. Underline the word sentence. Books of original entry, इसे books of original entry भी कहा जाता है. तो क्यों कहा जाता है? These are the books in which all the business transactions are first recorded daily. ये ऐसी बुक्स में जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है. जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल एंड सब्सिडरी बुक दोनों बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. अंडरलाइन, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इन स्मॉल बिजनेस all transactions are first recorded in only one book, that is a journal. बिजनेस अगर छोटे लेवल का है तो हम लोग सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में मेंटेन करते हैं, दैट इज जर्नल. इन बिग बिजनेस कंसर्न सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड डिफरेंट ट्रांजैक्शन. बिजनेस हम लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं, इफ वी आर रनिंग बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस,
then we are maintaining different subsidiary books for recording purpose. Students, याद आ रहा है subsidiary books which involve your purchase book, sales book, purchase return, sales return, cash book, petty cash book, and all these different books togetherly known as a subsidiary book. तो बिजनेस छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो हम लोग जर्नल मेंटेन करते हैं, बट बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये सारे सब्सिडी बुक्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं. नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स. स्लैश करके लिखो वहां पे स्टूडेंट्स कस्टमर्स. डेटर्स को ही दूसरा वर्ड है कस्टमर्स. अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट known as a debtor. A person who has to pay business for getting goods and services on credit. Underline the sentence. ऐसा आदमी जो बिजनेस को पैसा देने वाला है, किस लिए? For getting goods and services on credit. A debtor is a person who owes some amount to another person. Debtor के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डेटर ऐसा आदमी है जो दूसरे को पैसा देने वाला है. ओज का मतलब हैज टू पे, देना लागणं म्हणतो अमाउंट ड्यू. डेटर ऐसा आदमी है जो दूसरे को पैसा देने वाला है. ये डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस हैज टू रिसीव मनी फ्रॉम सच डेटर्स. बिजनेस को ऐसे डेटर्स के पास से पैसे मिलने वाले हैं. मतलब हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखा है. डेटर इज वन हु ओज टू अनदर पर्सन. डेटर ऐसा आदमी है जो दूसरे को पैसा देने वाला है. एंड फ्रॉम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के लिए डेटर्स ऐसे लोग हैं जिनके पास से बिजनेस को पैसा मिलने वाला है. बिजनेस हैज टू रिसीव मनी फ्रॉम सच डेटर्स. एग्जाम्पल, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा है 10,000 का क्रेडिट बेसिस पे. हियर मिस्टर बी हैज़ टू पे टू मिस्टर ए. मिस्टर बी को यह पैसा देना पड़ेगा ए को. सो मिस्टर बी इज अ डेटर ऑफ मिस्टर ए. तो मिस्टर बी ए के लिए क्या है? डेटर. नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स. स्लैश करके लिखो. दूसरा वर्ड क्रेडिटर्स के लिए है स्टूडेंट्स सप्लायर्स. A person to whom business has to pay for getting goods and services on credit is known as a creditors. ऐसा आदमी जो बिजनेस को पैसे देने वाला है for getting goods and services on credit is known as a creditor. A creditor is a person to whom business owes money. Creditor ऐसा आदमी है जो बिजनेस जिसे पैसा देने वाला है. अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी. बिजनेस जिन लोगों को पैसा देने वाला है, ऐसे सारे लोग बिजनेस के लिए क्या है? क्रेडिटर्स. अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल. क्रेडिटर ऐसा आदमी है जिससे हमें पैसा देना है. बिजनेस हैज टू पे मनी टू सच पर्सन. बिजनेस को इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, Business purchased furniture from Messrs. Sai Furniture Mart worth ₹5,000. बिजनेस ने साई फर्नीचर के मार्ट के तरफ से फर्नीचर खरीदा है 5,000 का. सो हियर बिजनेस हैज टू पे टू साई फर्नीचर मार्ट. सो साई फर्नीचर मार्ट इज अ क्रेडिटर ऑफ अवर बिजनेस. नेक्स्ट, कॅपिटल. मराठीमध्ये ज्याला म्हणतो आपण भांडवल. कॅपिटल. Capital means the total amount invested in the business by the owner. Underline. Capital मतलब ओनर ने बिजनेस में की हुई इन्वेस्टमेंट. In accounting sense, excess of assets over liability is known as a capital. That is also underline. अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब क्या है? सिंपल इंग्लिश, ओनर ने बिजनेस में की हुई इन्वेस्टमेंट. बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में excess of assets over liabilities, and that is presented in equation form. Capital is equal to assets minus liabilities. एग्जाम में अगर आपको ये टर्म लिखने को आती है तो आपको दोनों मीनिंग्स लिखने हैं. सिंपल इंग्लिश में कैपिटल का मतलब क्या है और अकाउंटिंग लैंग्वेज में मतलब क्या है. एंड अगेन यू हैव टू शो द इक्वेशन. तो आपको इक्वेशन भी बताना है. कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी.
A trader has his own assets and also has a liabilities to pay. Trader, that is a businessman, businessman के पास खुद की assets भी होती है and liabilities भी होती है. When assets are more than his liabilities, then difference is called as a capital. और business की अगर property ज़्यादा है liabilities से, then that difference is called as a capital. Example, not example, capital is a liability of the business. Capital business के लिए liability है, as this amount is payable by the business to the owner at the time of closure of business. Business के लिए capital liability है और क्यों है? Because this amount is payable by the business. ये amount business को pay करना पड़ेगा owner को. कभी pay करना है? At the time of closure of business. Closure of business का मतलब students business बंद होना. जिस दिन business बंद हो जाएगा उस दिन business को ये पैसे लौटाने पड़ेंगे owner को, and from that point of view capital is a liability for the business. Very important part, underline the sentence, capital is liability of the business. Business के लिए capital liability है. Next term, drawing. Drawing means any goods or assets or cash withdrawn by proprietor from business for his personal use. Underline the sentence, complete sentence underline with pencil. Drawing means any goods, assets or cash withdrawn by proprietor. Proprietor का ही meaning है students owner, businessman, business का मालिक. Underline the word proprietor, write simple English, owner. Withdrawn करना, withdraw करना, निकालना. बिजनेस की कोई भी असेट हो, गुड्स हो या फिर कैश हो, अगर ओनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है, निकालता है फॉर सेटिस्फाइंग हिज पर्सनल वांट, फॉर सेटिस्फाइंग हिज पर्सनल नीड, देन इट इज नोन एज अ ड्रॉइंग. पर्सनल यूज, वैयक्तिक वापर ज्याला म्हणतो आपण. ड्रॉइंग इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल में से डिडक्ट होता है, लेस किया जाता है. एग्जाम्पल, proprietor pays college fees of his son or his medical expenses. अगर ओनर उसके बेटे की कॉलेज फीस पे करता है या उसके मेडिकल एक्सपेंसेस पे करता है, then it is considered as a drawing, because here owner is using business money for satisfying his personal want. We finish reading up to the drawing point. Students, अभी आपको क्या करना है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी पार्ट कंप्लीट कर दिया है सो दैट आपको नोट्स में से भी पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है मीनिंग्स. अभी आपको ये नोट्स नोटबुक में कॉपी करने हैं अप टू 8 पॉइंट. अब जितना हमने रीडिंग कंप्लीट किया है ये आपको नोटबुक में कॉपी करना है. लास्ट होमवर्क हमने कंप्लीट किया है. लास्ट होमवर्क मैंने आपको दिया था मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी and distinguish between bookkeeping versus accountancy. आपने वो कंप्लीट किया है. उसके बाद नेक्स्ट न्यू पेज स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट ड्रॉ द मार्जिन स्टूडेंट्स. नए पेज पे, न्यू पेज पे मार्जिन ड्रॉ करो पेंसिल से. गिव हेडिंग विथ कलर पेन. गिव हेडिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको अप टू 9 टर्म्स आपको कंप्लीट करने हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते समय जैसे नोट्स में दिया है वैसे आपको कंप्लीट करना है. ट्रांजैक्शन का जो चार्ट दिया है, पहले आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है. उसके बाद जो चार्ट दिया है वो पेंसिल से ड्रॉ करना है. वर्डिंग्स आप लोग पेन से लिखेंगे, लाइन्स आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करोगे. वो चार्ट दिखाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा. बिजनेस ट्रांजैक्शन के पार्ट मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी. अंडर मॉनेटरी यू हैव अ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. वैसे सारे नोट्स में से आपको टर्म्स कॉपी करने हैं अप टू ड्राइंग. सो वी एक्सप्लेन अप टू द ड्राइंग. सो आपको ये पूरे अप टू ड्राइंग नोटबुक में कॉपी करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. और नेक्स्ट आगे के टर्म है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन पार्ट भी कंप्लीट करेंगे. थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर.